স্বয়ম্ভু মহামানৱৰ বিপৰীতে এজন প্ৰকৃত মানুহ। এইটোৱেই অপৰাধ নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ? জনতাৰ কান্ধত কান্ধ থৈ খবৰ লোৱাটো জানো অপৰাধ হ'ব পাৰে? যদি অপৰাধ নহয়, ৰাহুল দেশদ্ৰোহী কিয়? বিজেপি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ দৃষ্টিত ৰাহুল গান্ধী এজন দেশদ্ৰোহী। ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ ভালৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত বিভেদৰ ৰাজনীতি কৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশক অৱমাননা কৰে। চম্বলত সংঘটিত মছজিদ জৰীপৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা 4জন লোকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাত ৰাহুল গান্ধীক বাধা দিয়া হৈছে, কাৰণ ৰাহুল গান্ধী গ'লে তাত আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হ'ব। এইবোৰ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ। কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি ভুল কৰিলে যে তেওঁ বিজেপিৰ দৃষ্টিত দেশদ্ৰোহী হ'ল? তাৰেই এক খতিয়ান দাঙি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰাগিনী নায়কে। তেওঁ কয়, ৰাহুল গান্ধীৰ অপৰাধ এয়াই যে তেওঁ দেশৰ বাবে জীৱন বলিদান দিয়া পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ তথা আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাতি। তেওঁৰ ভুল এয়াই যে তেওঁ 7বাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। তেওঁৰ ভুল এয়াই যে যিটো সময়ত বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পায়, সেই সময়ত তেওঁ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ প্ৰেমৰ দোকান খোলে। তেওঁৰ দোষ এয়াই যে যিটো সময়ত এগৰাকীয়ে নিজকে নন বায়'লজিকেল স্বয়ম্ভু মহামানৱ বুলি দাবী কৰে, সেই সময়ত তেওঁ মুচি, ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ, গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী, ডেলিভাৰী এজেণ্টৰ দৰে লোকৰ সমস্যাবোৰ তেওঁলোকৰ কান্ধত হাত থৈ বুজ লয়। যি সংবিধানক অৱমাননা কৰি বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিছে, উচ্চ নিচৰ ৰাজনীতি কৰিছে, সেই সংবিধান ৰক্ষাৰ নামত ৰাহুল গান্ধীয়ে শপত খাইছে। সেয়া তেওঁৰ অপৰাধ। যিটো সময়তে এজন স্বয়ম্ভু মানৱে নিজৰ মনৰ কথা জনতাক শুনায়, সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে জনতাৰ কাষলৈ গৈ মনৰ কথা শুনে। সেয়ে তেওঁ দেশদ্ৰোহী নেকি? ঘুচপেঠি কাপোৰ দেখিলেই চিনি পোৱা যায় বুলি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলে। সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা কোৱাৰ বাবেই তেওঁ দেশদ্ৰোহী নেকি? মহিলাৰ সমবিকাশ আৰু সম উন্নয়নৰ কথা কয় বাবেই বিজেপি RSSৰ দৃষ্টিত তেওঁ দেশদ্ৰোহী। জাতি জনগণনাৰ জৰিয়তে সকলো জাতিৰ অধিকাৰৰ কথা কয় বাবে তেওঁ দেশদ্ৰোহী। তেওঁ শ্ৰমিক কৃষকৰ কথা কয়, তেওঁ মোদীৰ বন্ধু আদানীক সমালোচনা কৰে, সেয়ে তেওঁ দেশদ্ৰোহী। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ডক্টৰ ৰাগিনী নায়কে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীক বিজেপিয়ে দেশদ্ৰোহী সজোৱা বিষয়টোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে এনেদৰে। ৰাগিনী নায়কে RSS আৰু বিজেপিক টুকৰে টুকৰে গেঙৰ সদস্য বুলিও কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। तो देखिए, आज की प्रेस वार्ता भाजपाइयों और संघियों को आईना दिखाकर मैं शुरू करना चाहती हूं। तो ये कहना ही होगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए। या थोड़ा साधारण शब्दों में समझा देती हूं कि सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। और खुद शीशे के कमरों में, शीशे के घरों में रहने वाले जब दूसरों पर पत्थर उछालते हैं, जब आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, तो उनका क्या हश्र होता है, क्या दुर्गति होती है, ये आज की प्रेस वार्ता में मैं बताने का काम करूंगी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? और इतनी धृष्टता, इतनी निर्लज्जता, इतना घटियापन आप अपने पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे लाते हैं? मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। तो पूरे देश में जब सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम हो रहा है,
जब एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ की जाती है, घुसपैठिया कहा जाता है, कपड़े देखकर पहचानने की बात होती है, और बड़ी माफी के साथ मैं शब्द का प्रयोग करूंगी, जूते मारो, गोली मारो सालों को जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे वाली विभाजनकारी राजनीति को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे में एक व्यक्ति ये ठानता है, एक नेता ये दृढ़ संकल्प लेता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक मोहब्बत के फेविकोल से भारत को जोड़ना है। वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये ठानता है कि पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज को उठाना है, उनके हक और हुकूक की बात करनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण की बात करनी है, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान अपने हाथों में लेता है और कहता है कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को साकार करूंगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछूंगा, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों के, किसानों के, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, मोची हो, बढ़ई हो, उनके जीवन को जीकर उनकी तकलीफों को खुद महसूस करके निवारण और समाधान ढूंढने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। एक व्यक्ति जो इस देश की जनता, जिस पर स्वयंभू महामानव केवल अपने मन की बात थोपने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है, तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।